Hello friends, welcome back our YouTube channel Commerce John and Commerce Guidance. I am Achar Vilas. Welcome all of you. So today we discuss regarding the barter system and its limitation. So first of all, what is meaning of barter system? So the barter system is exchange of the where goods or services are directly exchanged for the other goods and services without using the medium of exchange such as a money. So किसी एक चीज़ के सामने किसी एक चीज़ की एक्सचेंज होना, यानी वीट के सामने राइस का एक्सचेंज होना. सो इट इज़ अ कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम विदाउट यूजिंग द मीडियम ऑफ मनी. ओके, सो exchange the goods and services against the goods and services, exchange the goods and services against the goods and services. Okay, so it is called a barter system. Okay, without using the money. So exchange the goods and services against the exchange the goods and services. So the limitation of barter system. So first of all, problem of mutual adjustment of want. With the social and economic development, the needs of human being increase. The needs of human is increase. So the economic structure was simple in earlier times, but it is become more complicated in the today's time. Now those who had a rice exchanged for a wheat did not need a wheat but the cloth under the barter. एज पर एग्जाम्पल कि मेरे पास वीट है, मुझे राइस चाहिए. राइस वाले बोलेगा कि मुझे वीट नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे तो क्लोथ चाहिए. ओके, क्लोथ वाला बोलेगा मुझे राइस भी नहीं चाहिए, मुझे तो घी चाहिए. ओके, घी वाला बोलेगा मुझे क्लोथ भी नहीं चाहिए, मुझे तो शूज़ की पेयर चाहिए. तो ये एक दूसरे की एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी वांट्स. ओके, सो while on the other hand one who had a cloth did not want to rise but want to give in exchange for their clothes, so there was a difficulty in establishing a need for each other. So on the other hand, one who had a cloth did not want to rise but want to give in exchange for their clothes. There was a difficulty establishing the need of each other goods or service to make the barter possible, making it challenge to establish the barter between the indivisible and divisible goods. So ये एक चैलेंज वाला काम था कि डिवाइजेबल एंड इनडिवाइजेबल के बीच में. मैंने आपको बताया कि वीट के सामने राइस नहीं चाहिए, राइस के सामने क्लोथ नहीं चाहिए, क्लोथ वाले को घी चाहिए, घी वाले को क्लोथ नहीं और शूज़ चाहिए. तो ये सारी चीज़ें पहले म्यूचुअल एडजस्टमेंट वांट में आती थी. नाउ डिफिकल्टी इन द स्टोरिंग वैल्यू. देयर वाज इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम इन द स्टोरिंग वैल्यू. सो हियर वैल्यू मीन्स एक्सचेंज वैल्यू. यस, स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स चैप्टर नंबर 2, प्राइस एंड वैल्यू. जिसका अबंडेंस सप्लाई होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, एज लाइक सनलाइट. So the farmer may exchange the wheat for a pair of shoes or clothes, but when the productivity increased and she and he had produced more wheat, so arise the problem of strong surplus of wheat. Yes, ये एक आपके बैंक में अगर पैसे पड़े हो तो फ्यूचर में आप काम कर सकते हो. अगर पहले के टाइम में सरप्लस वीट का प्रोडक्शन हो रहा तो फ्यूचर में हम उसके सामने क्लोथ ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, शूज़ की पैर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हम अंडर द बार्टर सिस्टम हम वीट के सामने ले सकते हैं अगर हमने लार्ज प्रोडक्शन पे काम किया है तो. ठीक है. सो क्वेश्चन इज अराइज हाउ टू बिकम अ स्टोर. यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हम उसको स्टोर कैसे करें. ठीक है. व्हेन इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल थ्रू द ओवन्स एफर्ट शी ही हैड टू एक्सचेंज दिस प्रोड्यूस for the goods and services. It was otherwise the difficulty to store a surplus good or store exchange value of these goods. Yes, no doubt आपका प्रोडक्शन सही है, इंक्रीजिंग है, आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये क्वेश्चन राइज होगा अंडर द बार्टर सिस्टम. अर्लियर टाइम्स में ये एक क्वेश्चन था कि हाउ बिकम अ स्टोर. ओके, सो ये प्रॉब्लम था. नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. ओके, सो नाउ with introduction of division of labor and specialization and industries driven economic, the issue of measuring the value of goods and services emerges. अगर एक डिवीज़न ऑफ लेबर हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में ड्राइवन इकोनॉमी हो रही है, तो एक इश्यू होगा कि हम इसकी वैल्यू को हम कैसे डिटर्मिनेशन करें और कैसे एमर्ज करें. Exchange the wheat for the rice was simple, but now a larger number of goods become available for exchange against the wheat, and hence it becomes difficult to determining and maintain the exchange value.
गॉट इट। सो नाउ अगर मेरे पास बहुत सारी मात्रा में वीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको फ्यूचर में मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अंडर द बार्टर, मैं कोई भी चीज़ ले सकता हूँ। लेकिन वीट के सामने मुझे अगर ये एग्जांपल दिया है कि 20 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू 40 kg राइस, 10 मीटर टेक्सटाइल्स, 1 kg घी in a modern structure. So the question measurement arise, how much textiles can exchange for a 1 kg ghee or how much rice can exchange for the ghee. Okay, so this is the question arise keeping in the mind, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती। So keeping in the mind ये बात आपको याद रखनी, कीपिंग इन द माइंड ये बात आपको याद में रखनी पड़ेगी कि वीट के सामने मुझे कितनी सारी चीज़ें चाहिए अंडर द बार्टर, हाउ मैनी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अंडर द बार्टर फॉर द एक्सचेंज ऑफ द वीट। ओके, ये हमें याद रखना पड़ता था कि भाई वीट के सामने मुझे इतने शूज़ मिलेंगे या इतनी घी मिलेगी या इतना क्लोथ मिलेगा, इतना राइस मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी के टाइम में आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना पैसा हुआ आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंटिंग प्राइस होती है। लेकिन उस टाइम कीपिंग इन द माइंड ये बहुत डिफ़िकल्टी थी। So it became difficult to determining the such measurement and hence arise a need for the universally acceptable measuring the road. This led to origin of money which became the standard measurement of value and the common denomination of the trade. ये प्रॉब्लम के हिसाब से मनी की अराइजमेंट हुई और मनी की ओरिजिन कैसे हुई हम कल बात करेंगे 4 स्टेप में। ओके, फिलहाल मीनिंग एंड लिमिटेशंस अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिलहाल मुझे आचार्य पलाश को यहाँ पर रजा दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ मनी के साथ मिलेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स।